भागवत वेबिनार पे आप सबका मैं सहर्ष सादर स्वागत करती हूँ। सबसे पहले सम्माननीय विद्यावाचस्पति संस्कृत तज्ञ गौतम भाई पटेल साहब, आपको मेरे सादर प्रणाम हो। उनके साथ हमारे यूनिवर्सिटी के डीन और वीसी, जो हमारे सबके फादर, फिलोसोफर और गाइड रहे हैं, ऐसे प्रशांत भाई दवे साहब, और अभी नई नई जो नियुक्त हुई है वो हमारी सबकी चहीती ऐसी नई रजिस्ट्रार सहना मैम, फिर हमारी यूनिवर्सिटी के सभी अध्यापक सदस्य और लाइफ मिशन की तरफ से आए हुए आचार्य प्रशांताचार्य, आचार्य अनंताचार्य, खास तौर पे उपस्थित है सन्यासिनी राजेश्वरी मैया जी, डॉक्टर नगीन भाई साहब, डॉक्टर योगेश भाई साहब, डॉक्टर कुसुम्बा सोडा, डॉक्टर गिरीश भाई साहब, और मेरे सबसे प्यारे दोस्त यानी मेरे विद्यार्थी, मेरे बच्चे जो 75 की ऊपर से उम्र के हैं, आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। आप सबको मेरे सादर प्रणाम हो। આપણે ગૌતમભાઈ પટેલ સાહેબની વાત કરીએ તો આપણે માટે અજાણ્યા નથી, કારણ કે આપણી યુનિવર્સિટીના જ એક સભ્ય છે, આપણા કુટુંબના જ એક વડીલ છે. અને ગયા વખતે જ્યારે આપણે રામનવમી પર રામાયણ વેબિનાર કરેલો ત્યારે સાહેબ પધારેલા અને રઘુવંશના રામની એમણે બહુ જ આપણને તમને બધાને ગમે એવી શૈલીમાં રસાળ વાતો કરી હતી અને રામનો મહિમા સમજાવેલો. આજે એ ભાગવત વિશે કહેશે. એમની ક્યાં માસ્ટરી નથી. હવે આજે એમના વિશે જો હું કહેવા જઉં ને તો આટલો 1 કલાક પણ ઓછો પડે, પણ સાહેબની પહેલી એક માણસાઈની વાત હું કરું. સાહેબ આજ સુધી, આજની તારીખ સુધી, અત્યાર સુધી સાહેબ યુનિવર્સિટીમાં ઓફલાઈન આવવા તૈયાર હતા. ઉંમર વર્ષ 86, હમણાં ચિકનગુનિયામાંથી પસાર થયા અને કૌટુંબિક એક આઘાતમાંથી પણ પસાર થયા. એમના જીવનસાથી હમણાં ધામમાં પધાર્યા, છતાં પણ સાહેબ આવવા તૈયાર થયા. પણ સામેથી અમે કહું કે સાહેબ આ પરિસ્થિતિ આવી છે, માવઠું છે અને કોરોનાનો વાવર છે, આપ પધારશો નહીં, આપ ઘરેથી ઓનલાઈન કરજો. તો એમને મદદ કરવા એમના દીકરા, એમના પૌત્ર બધા જ તૈયાર થઈ ગયા હતા અને સાહેબને જોઈન કરી આપ્યું. સાહેબના લગભગ 175 પુસ્તકો થયેલા છે, કદાચ વધારે. અને અત્યારે એમણે આપણને, આપણી યુનિવર્સિટીને હિન્દુ ધર્મ એકતામાં અનેકતા એ બહુ સરસ પુસ્તક આપણને ભેટ આપ્યું છે, જે આપણા શિક્ષકો વિદ્યાર્થીઓને બહુ કામ લાગે એવું છે. આપણે દરેક લાઇબ્રેરીમાં બધાને ભેટ આપ્યું છે. સાહેબ માટે એક મોટું ગૌરવ કહેવાય. અને આવા ગૌરવપ્રદ સાહેબ આપણે ત્યાં પધાર્યા છે. ઓલ ઇન્ડિયા ઓરિએન્ટલ કોન્ફરન્સ, જે લગભગ 100 વર્ષ જૂની છે, દર 2 વર્ષે એનું અધિવેશન યોજાય છે અને એમાં 100મા વર્ષે સાહેબ પ્રમુખ હતા. કઈ સંસ્થામાં? કે જેના પહેલા પ્રમુખ ડોક્ટર રાધાકૃષ્ણન હતા. વિચાર કરો, એ શ્રેણીમાં આપણા ગુજરાતમાંથી અને સંસ્કૃતના પહેલવલ્લા વિદ્વાન, એક જ વિદ્વાન એ નિમાયા હતા. અને એવા વિદ્વાન આજે આપણે ત્યાં પધારેલા છે. અને હું તમને કાયમ બધાને કહેતી આવી છું, આપણને બહુ જ એવું છે કે ભાગવત એટલે વાર્તાઓને, પણ વિદ્યાવતામ ભાગવતે પરીક્ષા. જે દિવસે આ સેમિનારનું આયોજન કર્યું, પહેલું મેં આ મૂક્યું હતું, સોનાની પરીક્ષા અગ્નિમાં, યોદ્ધાની રણ મેદાનમાં, ગૃહિણીની સંકટ કાળમાં અને વિદ્વાનોની ભાગવત પુરાણમાં થાય છે. એટલે ભાગવત પણ વેદની જેમ આખું રહસ્ય કથા છે. અને એટલી જ ડોંગરી મહારાજે એમની કથાનું જે નામ આપેલું છે શ્રી ભાગવત રહસ્ય. એ પુસ્તક તમે બધાએ ગ્રંથ જોયો છે, તો હવે હું કઈ વધારે કહેતી નથી અને વડીલ મુરબ્બી સાહેબને, गौतमभाई पटेल साहब ने आमंत्रित करूँ છું કે साहब आप पधारो. आप हिंदी में शुरू कर सकते, बाद में गुजराती में भी चालू रख सकते हैं. जी साहब पधारो. प्रणाम. जय गुरुदेव. जय. कृष्णम वंदे जगद्गुरुम. सनत कुमार प्रारब्धाम प्रभु श्री चंद्र मध्यगाम गुरु गंगेश पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा. गुरुम गंगेश्वरम नौमि ज्ञान विज्ञानदायकम पारिजातम प्रपन्नानाम सर्वसौख्यकरम नृण. સેમિનારના આયોજક અને પરમ વિદુષી એવા અરુણાબેન, મારા અભિન્ન હૃદય મિત્ર પ્રશાંતભાઈ,
નવા નિયુક્ત થયેલા બેન અને પધારેલા સંતો સૌને હું હૃદયથી પ્રણામ કરી ગુરુ કૃપાથી વિષયનો આરંભ કરું છું. ભારતે માનવમ જન્મ પ્રાપ્ય ભાગવતમ નયૈ શ્રુતમ પાપ પરાધીનૈર આત્મઘાતસ્તુતૈ કૃતઃ. સ્કંદ પુરાણ ભાગવત મહાત્મ્ય 6:100 છઠ્ઠા અધ્યાયનો 100મો શ્લોક કહે છે આપણને કે જેણે ભારતમાં જન્મ પ્રાપ્ત કર્યો અને પછી ભાગવત સાંભળ્યું નહીં, એને એ પાપ પરાધીન છે, પાપને વશ છે અને એને આત્મઘાત કર્યો છે. આ ભાગવતનું પરંપરામાં મહત્વ છે. હમણાં બેને આપણને કહ્યું, બરાબર, સોનાની પરીક્ષા અગ્નિમાં, ગૃહિણીની પરીક્ષા ત્યાં, વિદ્યાવતામ ભાગવતે પરીક્ષા કરવાઈ છે. મિત્રો, શ્રુતિ સ્મૃતિ તુ દ્વે નેત્રે પુરાણમ હૃદયમ સ્મૃતમ. આપણે ત્યાં એવું કહ્યું છે, શ્રુતિ એટલે વેદ અને સ્મૃતિ એટલે મનુસ્મૃતિ વગેરે. આ બે જાતનું સાહિત્ય આપણે ત્યાં. અને એમાં ત્રીજું એ નેત્ર છે, જ્યારે પુરાણ છે એ હૃદય છે. હવે વિચાર કરો કે શ્રુતિ કે સ્મૃતિ ન હોય, બરાબર, તો એ ચાહે આંધળો થાય. બે ન હોય તો આંધળો થાય, આંખ ન હોય તો, અને એક ન હોય તો કાણો થાય. પણ જો ભાગવત, જો પુરાણ એ હૃદય છે અને હૃદય જ ન હોય તો, માટે પુરાણનું આવું મહત્વ. ભાગવતની મોટી વિશેષતા એ છે, એવું કહેવાયું છે કે વેદ પુરાણમ કાવ્યમ ચ. હા, वेद पुराण और काव्य प्रभुर मित्रम तथैव च, वो प्रभु की तरह, मित्र की तरह और प्रिया की तरह बोधयन्ति प्राहु. वेद हमें उपदेश देता है स्वामी प्रभु की तरह, राजा की तरह. एज अ किंग कहेगा कि ये करो, सत्यम वद धर्मम चर, ऐसे आदेश देगा. फिर आता है पुराण, वो मित्र की तरह, और काव्य जो होता है वो प्रिय, कांता सम्मिततया उपदेश, ऐसा मम्मट ने कहा है. लेकिन भागवत की विशेषता ये है कि तीनों प्रकार से हमें वो उपदेश देता है. इसलिए कहा गया है वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा. भागवत वेद उपनिषदों का सार है. निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये बहुत प्रसिद्ध है. भागवत में जो वर्णन मिलता है वो मैं बता दूं. श्रीमद् भागवतम पुराण अमलम यद वैष्णवानाम प्रियम. ये भागवत निर्मल पुराण है, वैष्णवों को प्रिय है. उसमें क्या है? पारमहंस्यम एकम अखिलम ज्ञानम परम गीयते. पारमहंस्यम ज्ञान, सन्यासियों का ज्ञान. याद रखे, गीता गृहस्थियों के लिए है, भागवत सन्यासियों की संहिता है. पारमहंस्याम संहितायाम, ऐसा प्रत्येक अध्याय के अंत में लिखा है. वहां क्या है? ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म्यम आविष्कृतम. वहां ज्ञान विराग भक्ति और नैष्कर्म्य. देखिए, ज्ञान भक्ति और कर्म भगवत गीता में है, भागवत में उसमें विराग एक ज्यादा डाला है. और तत्शृण्वन विपठन परायण विचारण परो भक्त्या विमुच्येति. वो सुनने वाला, पढ़ने वाला, उस पर विचार करने वाला भक्ति से, संसार से वो नर मुक्त हो जाता है. ये भागवत है. हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर वॉल्यूम 1 पेज 554, प्रोफेसर एच विंटरनिस, बहुत बड़े विद्वान है जिन्होंने पूर्व भारतीय साहित्य का सुंदर इतिहास लिखा है, वैदिक इतिहास विशेष करके. वो कहते हैं भागवत पुराण is indisputably the most famous Puran. Still, it exerts a powerful influence on the life and the thought of innumerable adherents of the sect of the Bhagavata. भागवत पुराण एक अद्भुत पुराण है. वो, इसमें विवाद नहीं है
को आज भी उसकी जो असर है वो वैष्णवों के पर बहुत अच्छी तरह है। प्रोफेसर इंगाल्स जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रहे और एशियन स्टडीज के, उन्होंने ऐसा लिखा, इफ आई हैव टू प्रिपेयर एन एंथोलॉजी ऑफ द बेस्ट पोएम्स ऑफ द वर्ल्ड, आई कैन नॉट निग्लेक्ट द 10th स्कंद ऑफ भागवत पुराण। मुझे दुनिया के उत्तम उत्तम, वो 11 भाषाएं जानते थे, चाइनीज भी जानते थे, तमिल भी जानते थे, तेलुगु भी जानते थे, पाली भी जानते थे, संस्कृत भी जानते थे, मतलब इतने बड़े विद्वान। और उन्होंने ऐसा कहा कि दुनिया भर के सर्वोत्तम काव्यों का संग्रह मुझे करना है तो मैं भागवत की उपेक्षा नहीं कर सकता। भागवत के समय के बारे में मतांतर है। व्यास ने उसका आरंभ किया उस 10 से 5000 साल पहले, लेकिन प्रोफेसर बर्नोप, विल्सन और कोलब्रुक इसको 1300 में मानते हैं। दासगुप्ता एक ईस्वी सन 1000 में मानते हैं। राधा कृष्णन इत्यादि इसको 900 में मानते हैं। JN राव उसको 550 और 650 में मानते हैं। प्रोफेसर हजरा जिन्होंने पुराणों में काफी काम किया, वो ईस्वी सन 600 में मानते हैं। दीक्षितार 300 में, तो SD ज्ञानी ईस्वी सन पूर्वे 1200 से 1000 तक पुराण में ले जाते हैं। देवर्षि गणी क्षमा श्रवण, याद रखे, अपना जो वल्लभी है ना, वो एक समय बहुत समृद्ध राज्य था और जैनों का वहां प्रशासन था। वहां देवर्षि गणिक समाक्षमण ने जैनों की एक बहुत बड़ी समिति बुलाई थी। उसका समय ईस्वी सन 463 और 466 था। उन्होंने सभी जैन ग्रंथों 300 लेहिया बैठा के फाइनल किए और वहां नांदी सूत्र है उनका। वो नांदी सूत्र में मिथ्या ग्रंथ, क्योंकि हिंदू धर्म के है ना, तो जैन उसको मिथ्या ग्रंथ कहेंगे, तो मिथ्या ग्रंथों में जो नाम लिखे गए उसमें भारत यानी महाभारत, रामायण, कौटिल्य का अर्थशास्त्र और भागवत का भी निर्देश है। तो इससे स्पष्ट हो गया कि ईस्वी सन 463 से पूर्व भागवत का अस्तित्व था। आज हम जो विषय ले रहे हैं वो भागवत में योग। मित्रों, योग शब्द के अर्थ जाने। हम तो जो पतंजलि योग वो ही जानते, इतना नहीं है। डिक्शनरी में, शब्दकोश में उसके अनेक अर्थ दिए हैं। जैसे युज धातु से वो बनता है जुड़ना, मिलना, मिश्रण करना, मिलाप, संगम, मिश्रण। जैसे उपरागान्ते शशिन समुपगत रोहिणी योगम, देखा, रोहिणी योग को प्राप्त हुई यानी उसके साथ गई। अच्छा, उसका संपर्क होता है, स्पर्श भी होता है, संबंध भी होता है। तमंकमारोप्य शरीर योग जयी सुखैर निषिंचन मृतम त्वचिप्र, तो ये रघुवंश में आता है। अच्छा, उसका और भी प्रयोग है कि प्रयोग में एतैर उपाय योगस्तु शक्यास्ता परिरक्षितुम, तो यहाँ योग का प्रयोग हुआ है तो उसका परिणाम भी होता है। जैसे रक्षा योगात, तो यहाँ शाकुंतल में रक्षा योगात यानी परिणाम या फल के रूप में इदम अपि तपस प्रत्यहम संचिनोति, वो शाकुंतल 2:14 में आता है। आगे योग का अर्थ वाहन, सवारी है, जुआ भी है, कवच भी है, योग्यता, औचित्य भी है, व्यवसाय, कार्य है, दाव, पेच, अरे कूट चाल भी योग है, तरकीब भी योग है, कोशिश, उत्साह, अध्यवसाय, ये भी अध्यवसाय यानी निर्णय, वो भी योग है। उपचार, चिकित्सा, इंद्रजाल, मंत्र, जादू, प्राप्ति, अभिग्रहण, धन, दौलत, द्रव्य, विधि, पराश्रय, संबंध, ये सब योग में आते हैं। योग शब्द के उसका शब्द की निर्वचन वो या व्युत्पत्ति, वो भी योग शब्द का ही अर्थ है। गंभीर भाव चिंतन वो है। आगे मन का संकेंद्रीकरण और परमात्मा चिंतन, जो योग दर्शन में चित्तवृत्ति निरोध माना गया, वो भी योग का अर्थ है। तो याद रखे, ये है योग।
मजे की बात यह है कि हमारे वहां रघुवंश में ऐसा कहा गया कि बचपन में अध्यस्त विद्या नाम, यौवने विषयेषिणाम, वार्धक्ये मुनिवृत्ति नाम, योगे नान्ते तनु त्यजाम। ये राजा कैसे थे कि योग के द्वारा अंत में अपना देह छोड़ते थे। जाडेजा जी, इस श्लोक की पैरोडी मेरे प्रोफेसर ने बनाई थी। बाल्ये अनध्यस्त विद्या नाम, आज क्या है, बचपन में पढ़ते नहीं है, यौवने विषयेषिणाम रहेगा वैसे जैसे है वैसे। हाँ, वार्धक्य मुनिवृत्ति नाम नहीं, वार्धक्य श्वान वृत्ति नाम, कुत्ते जैसी वृत्ति हो जाती है। और योगे नान्ते की जगह रोगे नान्ते तनु त्यजाम, ये हमारे कलयुग के लोगों की परिस्थिति है। लेकिन पतंजलि द्वारा योग जो स्थापित किया गया वो आज हम सब जानते हैं और उसको उसी प्रकार लेते हैं। लेकिन उसके और भी मीनिंग, जैसे गणित शास्त्र में योग यानी जोड़ना, दो संख्या को जोड़ना और योग, ज्योतिष में दो ग्रहों को जोड़ना, तारा पुंज योग का विशेष प्रकार का एक ज्योतिष का विभाग है, इसमें 27 योग गिनाए गए। नक्षत्र पुंज को भी योग कहते हैं। योग का अर्थ भक्ति भी हुआ है, अरे योग का अर्थ गुप्तचर भी हुआ है। मतलब अनेक प्रकार से अर्थ इस शब्द के है। आज हमें तो वही योग लेना है जो भगवान पतंजलि द्वारा प्रचलित हुआ अर्थ, और हम सब उसको उसी अर्थ में रहते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में भी जो योग शब्द का प्रयोग है वो भगवान पतंजलि के द्वारा प्रस्थापित जो योग है उसको ही केंद्र में रख के चलते हैं। आगे चले। अब पुराण तो जो है हमारा, तो उसमें आश्चर्य होगा कि योग की चर्चा हमारे वहां भागवत में, मैंने ये आने के बाद 18,000 पूरे श्लोक का पाठ किया भागवत का, और कार्य भी था। और उसमें भागवत में योग कहाँ कहाँ आता है वो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जैसे योग धर्मी नाम वो भागवत के महात्म्य में भी है, योग माया वो भी 3:16-15 में है, योगिनस शब्द है, योगारूढ़ है, योगोमय है। आगे चलकर योग समाधिना शब्द है, योगिनो योग रूढ़ा है, महायोगी योग लक्षणे ही निष्णातम योग मायासु, ये तीजे स्कंद में सब आते हैं। अमोघ योग योगा योग माया दीपे, अमोघ योग की माया के अधीप, ऐसा 3:23-10 में। मतलब मैंने एक एक शब्द और कौन से श्लोक में भागवत में उसका बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट तैयार किया है। वो कम से कम 20 पन्ने का मेरे सामने है। मैं समझता हूँ वो सब पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन अभी किसी को ये करना हो तो जानना चाहिए कि यहाँ योग, योगांत, योगाचार्य, योगारूढ़, योगासन, योगेंद्र, योगीश, योगेश्वर, योगक्षेम, योग चूर्ण, जादू का चूर्ण, योगदान, योगनाथ, योग निद्रा, योगपत्र, योगपति, योग बल, योग माया, योग रूढ़, योग रोचरा, योग वर्तिका, योग विद, योगाभ्यासी, योग शास्त्र, योग समाधि, ऐसे अनेक शब्द जो दिए हैं वो सबका स्थान के साथ मैंने नोट्स तैयार किए। मैं अभी नहीं पढ़ता हूं क्योंकि हमें और भी चीज भागवत में देखनी है, और ये है। ऐसे मेरे पास 21, 27, 28 पन्ने हैं जिसमें ये सब नोट्स मैंने तैयार किए हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो अनेक शब्द आए हैं उसमें एक शब्द है हमारे पास, योग माया समावृता। भगवान ने जब रास का आरंभ किया देखा, और उस समय तो ये योग माया शब्द के ऊपर मैंने 13 कमेंट्रीज देखी और उसमें अलग अलग अर्थ दिए। सबका कोटेशन जैसे मैंने लिख कर रखा है, अयोगेशु या माया कृत्वा ताम अशुभाम तद योगाय वा तस्मिन् योगाय वा माया ताम उपगता
माया कृपायाम लालायाम मूल ज्ञाने छले इति शाश्वत। ऐसा बहुत लंबा कोटेशन मेरे पास केवल ये वंशीधर की भावार्थ दीपिका में है। मित्रों, सीधी बात यह है, यदि किसी को इस शब्द पर शोध पत्र करना हो तो कृष्ण शंकर शास्त्री जी ने श्रीमद् भागवत की सभी टीकाओं के साथ कम से कम 20 वॉल्यूम प्रसिद्ध किए, बहुत बड़े हैं, और उसमें ये शब्द और उस पर 15-20 टीका है, वो करो। मैंने तो काफी या किया है, मैं सब यहाँ नहीं देने वाला हूं, क्योंकि जरूरत ये है कि हम और चीज इसमें देखना चाहते विस्तार से, इसलिए। लेकिन यहाँ योग के जो अर्थ किए गए, वो हम जो योग अर्थ करते हैं वो नहीं है। योग का अर्थ यहाँ संयोग लिया, माँ अर्थ लक्ष्मी के साथ संयोग, माँ यानी राधा के साथ संयोग। आगे बढ़ के मांग शब्द धातु लेकर जो शब्द करता है वो माया, और वो बंसी, बंसी मधुर ध्वनि करके बुलाती है, तो वो अर्थ भी लिया गया। और फिर वहां एक टीकाकार ने वहां तक कह दिया कि रुद्र भगवान शिव विष्णु की बंसी बने, कृष्ण की, इसलिए भगवान ने योग माया का आश्रय लिया, यानी बंसी, और बंसी में भगवान शिव को निमंत्रित किया और कहा कि मुझे कामदेव पर विजय प्राप्त करना है, इसलिए आप आए और हमें मदद करे। उस दृष्टि से योग माया समावृता ऐसा है। और यहाँ एक पाठ भेद भी है, योग माया मयो अच्युत। भगवान जो है वो योग माया मय है, ये रास पंचाध्यायी का आरंभ का प्रथम श्लोक है, और वहां वो अच्युत भी है, पाठांतर है। योग माया समावृता के साथ योग माया मयो अच्युत, ऐसा पाठ है। और वो भी समझिए, अच्युत यानी स्वयं च्युत नहीं है वो योग माया, क्योंकि यहाँ ऐसी परिस्थितियां हैं कि किसी का भी मन चलित हो जाए, देवों का भी हो गया, देवों की पत्नियों का भी हो गया, क्योंकि कामोद्दीपक सभी परिस्थितियां उपस्थित थी, फिर भी भगवान अच्युत रहे, वो यहाँ बताया। उसी प्रकार भगवत गीता में भी ये शब्द आया है, योग माया नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया, और वो है 7:25, लेकिन वो वहां देख लेना चाहिए। हम भागवत के योग पर आते हैं। एक याद रखे मित्र, जीवन में बिल्कुल याद रखने की बात है कि गीता हमें सिखाती है हमें कैसे जीना है। अर्जुन रण छोड़कर जाने वाला था, उसको प्रभु वापस लाए और ये किया। भागवत हमें सिखाता है हमें कैसे मरना है। म्रियमाणस्य किम कार्यम, ये परीक्षित का प्रश्न है, वो मरने के लिए तैयार होकर बैठा है, और भागवत सिखाता है कि हाउ टू डाई। फिर से नोट कर लीजिए, गीता सिखाती है हाउ टू लिव, हमें कैसे जीना सीखना हो तो गीता की शरण में जाओ। और हाउ टू डाई, क्योंकि मेरी एक बहन थी, वो गुजराती में ऐसा कहती थी कि गौतम, जीवा से जेम तेम मरा से केम, इट इज डिफिकल्ट टू डाई। मित्रों, हम अपनी इच्छा से मर भी नहीं सकते, इतने परतंत्र है हम। क्या है? कुछ नहीं है, मान बैठे हम है, यो हमारा मिथ्या अभिमान है। लेकिन योग द्वारा आप चाहे तो आप, और मजे की बात यह है, आश्चर्य होगा मित्रों, भागवत का 11वां स्कंद 30वां अध्याय और 26वें श्लोक में ऐसा लिखा है कि बलदेव जी ने अपना देह त्याग किया, लेकिन कैसे किया? योगम आस्थाय। सुनिए, राम समुद्र वेलायाम योगम आस्थाय पौरुषम तत्याज लोकमानुष्यम संयोज आत्मानमात्मनि। अपने आत्मा को आत्मा के साथ संयोज्य करके, जोड़ के योग, और योग का आधार लेकर, योगम आस्थाय, योग के आधार लेकर वो अपना वहां से इस संसार से चले गए। अद्भुत बात है। ऐसा नहीं तो योग मरना भी सिखाता है। आगे चले, योग गति, उसी प्रकार वहां 11वें स्कंद में 13 वहां आता है, भगवान कृष्ण वो भी योग गति द्वारा इस संसार को छोड़ के गए हैं। देखिए,
भगवान पितामहं वीक्ष्य विभूतिर आत्मनो विभुः संयोज आत्मनि चात्मानं पद्मनेत्रे न्यमीलयत् लोकाभिरामं स्वतनुं धारण्या ध्यान मंगलम योगाधारणया आनेय आग्नेय दद्वा धाम आविशत स्वकम। वहां ऐसा स्पष्ट लिखा है कि भगवान ने अपने आत्मा को आत्मा के साथ संयुज्य किया और फिर जो अपना लोकाभिराम स्वतनु था उसको धारणा, ध्यान और मंगल के स्वरूप उसको योग धारण करके अपना देह उन्होंने छोड़ दिया। क्योंकि उस समय क्या था, बहुत सुंदर वर्णन है। ब्रह्मा भवानी के साथ संभव, पितृ, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर, फिर आगे महोरगा, चारणा, यक्ष, राक्षस, किन्नरस, अप्सरा, सब लोग भगवान के निर्वाण को देखने के लिए आकाश में उत्सुक बनकर आए थे, पुष्प वृष्टि कर रहे थे। और उस समय भगवान ने योग धारण करके, तो आप समझिए योग का क्या महत्व है। वो आपको मरना सिखाता नहीं, बलराम भी योग का आधार लेकर गए और कृष्ण भी योग का आधार लेकर गए। एक बहुत बड़ी बात है कृष्ण की योग गति जो है, देखा, क्योंकि ब्रह्मादयस्तेस्तु दृष्ट्वा योग गतिम हरे विस्मिता स्ताम प्रशंसन्त स्वम स्वम लोकम ययुस्तदा। तो योग द्वारा गति प्रभु ने प्राप्त की। तो समझिए जीने के लिए योग है, मरने के लिए भी योग की आवश्यकता भगवान कृष्ण को और भगवान राम यानी बलराम को भी पड़ी। कैसी अद्भुत बात है कि योग के बिना हम जी नहीं सकते, योग के बिना मर भी नहीं सकते। यदि आपने योग सिद्ध नहीं किया तो एक सामान्य प्राणी की तरह मरना ही होगा। देव तो इसलिए कहते हैं कि भागवत क्या कहता है, परो ही योगो मनस समाधि, स्कंद 11 अध्याय 22 श्लोक 46। वह स्पष्ट कहा कि उत्तम योग क्या है कि मन की समाधि, सम्यक आदि, सर्वे मनोगृह लक्षणांता। देखिए पूरा श्लोक, दानम धर्मो नियमो यमश्च श्रुतम च कर्माणि च सद्व्रतानि। दान हो, धर्म हो, स्वधर्म, नियम हो, यम हो, श्रुत यानी ज्ञान या कर्म या सद्वृत, ये सर्वे मनोनिग्रह लक्षणांता। योगश चित्त वृत्ति निरोध, वो शब्द मुझे आपको कहने की जरूरत नहीं है। या चित्त निग्रह के स्थान पर मनोनिग्रह, और मनोनिग्रह ही योग है। देखा ने, क्योंकि परो ही योगो मनस समाधि, ऐसा भागवत 11, 22, 46 में हमें कहता है। तो देखिए, समाहितम यस्य मन प्रशांतम दानादिभिः किम वदतस्य कृत्यम असंयतम यस्य मनो विनश्यत दानादिभिश्चै परम किमेभि। बहुत समझने की बात है कि आपका मन समाहित नहीं हो, आपका मन यदि समाधि द्वारा प्रशांत नहीं हो तो दान इत्यादि करने का क्या अर्थ। और असंयत जो मन है वो दान इत्यादि करे तो भी सब विनष्ट है। इसलिए दान, मन प्रशांत होने से दान इत्यादि की जरूरत नहीं, और मन प्रशांत नहीं हो तो भी दान इत्यादि निष्फल है। कैसी अद्भुत बात है। मन की प्रशांति यानी योग की प्राप्ति वही होना चाहिए, ये यहाँ कहा गया है। तो योग प्रभाव विदुता खिल कर्म बंधा। देखिए, आपको जीवन में सर्व कर्म बंधों से पर होना है तो आपको योग प्रभाव, ये दशम स्कंद के 33वें अध्याय के 35वें श्लोक में वहां कहा गया है कि योग प्रभाव विदुता अखिल कर्म बंधा। योग के प्रभाव द्वारा जब तक कर्म के बंधन का विनाश नहीं होता है तब ना भोक्तम क्रियते कर्म कल्प कोटि क्षतैरपि। एक नहीं, करोड़ों कोटि शत जन्म लो। तो इसलिए योग के प्रभाव से ही आप कर्म बंध से मुक्त हो सकते हैं। कपिल योग जो स्कंद, तृतीय स्कंद में 28 अध्याय से शुरू होता है, वहां विस्तृत है और उसकी चर्चा अवश्य हम करेंगे। वो अपनी माता को कह रहे हैं
कि योगस्य लक्षणम वक्ष्ये सबीजस्य नृपात बचे मनो ये नैव विधिना प्रसन्नम प्रसन्नम याति सत्पथम। योग क्या है? मैं आपको योग का लक्षण कहूंगा। देखिए, मैं आपको योग का लक्षण कहूंगा सबीज, बीज के साथ। वो कैसा है कि भवो ये नैव विधिना, आपका जो मन जिस विधि द्वारा प्रसन्न होगा और सत मार्ग में प्रवर्तित होगा। तो जब तक योग नहीं करते तब तक मन सत मार्ग में नहीं जाता है। उसके बाद उन्होंने जो चर्चाएं की, अहिंसा, सत्यम, अस्तेहम, यावत अर्थ परिग्रह, यावत अर्थ परिग्रह यानी जितनी जरूर हो उतना ही लेना, वहां अपरिग्रह शब्द है। ब्रह्मचर्य, तपो, शौचम, स्वाध्याय, और आगे पुरुषार्चनम यानी भक्ति, ये नोट करिए। मौनम, सदा सन जय, आसन जय, स्थैर्यम, प्राण जय, शनैहि, प्रत्याहार, चेन्द्रियाणाम, विषयात मनसा मनसा रुदि, फिर स्वधिष्ण्यानाम एक देशे, धिष्णा यानी बुद्धि, अपनी बुद्धि को एक देशे स्थापित करना, मनसा प्राण धारणम, फिर आगे वैकुंठ लीला भी ध्यानम, समाधानम तथा मनः, एतैर अन्यैश्च पथिभिर मनो दुष्टम असत्पथम बुद्ध्या युंजीत सनकै जित प्राणो यतीन्द्रियः। ये सब मार्ग है, ये सब बताए। इसमें से बहुत पतंजलि में है। गीता याद आती है, शनै शनै रूपमेद धृत्या बुद्धि गृहीतया, और यहाँ भी बुद्धिया युंजीत शनकैर, वही बात जो कपिल यहाँ कह रहे हैं। सीधी गीता के अर्थ है। देखिए, शुचौ देशे प्रतिष्ठाय, वहां स्थिरम आसनम आत्मन है, वहां हमें ये कपिल भगवान कह रहे हैं कि शुचौ देशे प्रतिष्ठाय विजितासन आसनम, आसन को जीतकर, तस्मिन स्वस्ति समासीन, स्वस्ति आसन में बैठकर, रुजुकाय समभ्यसित, रुजु यानी स्थिर, स्ट्रेट शरीर रख के, उसके द्वारा फिर कुंभक द्वारा प्राण का शोधन करना। मनो अचिरात स्यात् विरजम जीत श्वासस्य योगिन, आप अपने श्वास को जीत लेंगे प्राणायाम द्वारा। तो फिर कैसे? तो कहते हैं उसका मन विरज, रज से मुक्त होता है। उदाहरण देता है काव्य में कि वाह्याग्निभ्याम तथा लोहम मातम त्यजति वही मलम, जो लोह होता है उसको वायु और अग्नि में तपाते हैं तो उसका मल चला जाता है लोहे का, उसी प्रकार यह चटा है। इसलिए कहते हैं प्राणायामैर दहेत दोषान धारणा विश्च किल विषान, प्राणायाम द्वारा दोष को, अच्छा आगे धारणा द्वारा किलविष यानी पापों को, प्रत्याहरण संसर्गान, प्रत्याहार द्वारा सब संसर्ग को, और ध्यानेन ईश्वर गुणान, ध्यानेन अनीश्वर, अनीश्वर के जो गुण, ये सबको ध्यान से दूर करना चाहिए। मित्रों, यहाँ बीच में एक बात याद आती है, मैं बता दूं, वो यहाँ नहीं है फिर भी जानने लायक है। हमारे वहां भगवान शिव का जो मंदिर है ना, ये पूरा योग का प्रतीक है। योग के जो 8 अंग है, यम, नियम, आसन इत्यादि, देखिए मुझे मकरंद दवे जी ने ये बताया था और मुझे बहुत पसंद आया, इसलिए मैं बीच में कह रहा हूं, नोट कर लीजिए। यम, देखा वो जो भैरव है वो यम का प्रतीक है। शिव मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहले भैरव आते हैं, उनको प्रणाम करके ही जाना होता है। पशुपतिनाथ में जाओ, पहले बगल में भैरव की मूर्ति है, अद्भुत मूर्ति है सारी दुनिया में, और उसका दर्शन करो, बाद में जाओ। तो भैरव यम, यमयति, जो कंट्रोल करता है वो भैरव है। देखा, फिर आता है नियम। हम अंदर आते हैं तो वहां कछुआ बैठा है, वो कछुआ जो है ना, टॉर्टोइस, वो नियम, क्योंकि वो इंद्रियों को, गीता में यही उपमा दी गई है, वो इंद्रियों को अपने संकोच में लेता है, तो ये कछुआ, ये हुआ नियम। फिर आता है आसन, वो है नंदी, सामने बैठा है स्थिर होकर, तो हुआ आसन, यम नियम आसन। प्राणायाम, वो है हनुमान जी। वायु,
और वायु के पुत्र होते हुए हनुमान जी जो मंदिर में होते हैं, वो शिव मंदिर में, वो प्राणायाम के प्रतीक है। प्रत्याहार यानी इंद्रिय बाहर जाए उसको वापस लानी, वो गणपति है। उसकी सूंड आगे भी जाती है फिर वापस आती है, तो ये है प्रत्याहार यानी भगवान गणेश। देखा, प्रत्याहार। धारणा वो सर्प है, वो सर्प ऐसे है, धारणा करता है इधर 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 ऐसा। हाँ, ते धारणा। माँ पार्वती ध्यान है, स्थिर बैठी है, और शिव स्वयं समाधि है। तो इस प्रकार योग के सभी लक्षण हमें भगवान शिव के मंदिर में प्राप्त होते। अब जब दर्शन को जाओ ने, तो शिव मंदिर में ये सब धारणा मन में रख कर जाना, कल्याण होगा। आगे आइए यहाँ। तो हम क्या कर सकते हैं कि प्राणायाम द्वारा देह के दोष, धारणा द्वारा पाप, प्रत्याहार द्वारा संसर्ग, और ध्यान द्वारा अनिश्वर गुणोदन दूर करके यदा मन स्वम विरजम योगेन सुसमाहितम काष्ठम भगवतो ध्यायेत स्वनासाग्रवलोकनम। आइए, नासिक का अग्रम स्वम प्रेक्ष्य, गीता कहती है। और वही बात कि जब मन विरज हो जाए, योग द्वारा सुसमाहित हो, तो फिर काष्ठा भगवत, भगवान का ध्यान। अब ये ध्यान रखना, ये भागवत है, वो सबको भक्ति बना देता है। तो पतंजलि के योग को उसने भक्ति ही बना दिया। आगे भी बताऊंगा कि यहाँ भी भगवान का ध्यान करो, काष्ठा आखिर समाधि में, और वही आपको करना है। और फिर बात यह है कि यहाँ प्रभु के वर्णन का, प्रभु का कैसे प्रभु का ध्यान करना, अद्भुत अद्भुत वर्णन है, इतना सुंदर काव्यमय है। और टीकाकाल उस पर इतने भारी गए। अरे मित्रों, मेरे पास तो प्रभु के पास है, हमारी एक गुजराती विदुषी गृहिणी, प्रोफेसर नहीं है, उसने 20 साल तक, कितना 20 साल तक प्रयत्न करके विद्वानों के द्वारा सहाय लेकर श्रीमद् भागवत की श्रीधरी टीका का पूरा गुजराती अनुवाद 5 भागों में लिखा है। कितने बड़े बड़े 5 हजार पन्ने के। रियली शी डिजर्व्स कॉम्प्लीमेंट्स। वो है वैदेही अध्यारू, और वो मेरी विद्यार्थिनी रही है, और मैं उनकी शुभकामना करता हूँ और आशा करता हूँ वो आगे भी कुछ अच्छे काम करे। और मैंने उनको विनंती भी की है, और वो अपनी यूनिवर्सिटी को ये 5 भाग अपनी ओर से भेंट के रूप में प्रस्तुत करेगी। वहां मैंने पढ़ा, और भी पढ़ा, मेरे पास तो कृष्ण शंकर का भी पूरा 22-25 वॉल्यूम है। लेकिन इसमें ये भगवान का वर्णन दिया है, रूप का वर्णन है प्रभु का। इतना सुंदर वर्णन भागवत में अनेक बार है, लेकिन यहाँ भी जो है वो हृदयंगम है। मित्रों, कुछ न होवे, ये इसकी फलश्रुति के रूप में ये वर्णन ही पढ़ना जीवन। याद रखे, मेरे सदगुरुदेव भगवान स्वामी गंगेश्वरानंद अपनी एक प्रिय शिष्या रत्नन बहन फौजदार के पास गए। उसने गंगेश्वरानंद जी के जीवन पर 3 वॉल्यूम लिखे, 300-400 पन्ने के। योगेश्वर गुरु गंगेश्वर, उसमें एक प्रसंग है। अपनी जन्म तिथि आई तो उसने गुरुदेव को कहा, आप मेरे घर पधारे। गुरुदेव पधारे, षोडशोपचार विधि पूर्वक पूजन हुआ, और बाद में गुरुदेव ने परावाणी का उच्चारण किया। वहां जो कहा है वो योग, पूरे योग शास्त्र का सार है। सुनिए, गुरुदेव ने कहा कि बेटा, आज से आपका जीवन तप और वैराग्य संपन्न हो। देखिए, वृद्धावस्था में यही करना है, आपका जीवन तप और वैराग्य संपन्न हो, कृष्ण चंद्र की रूप माधुरी के चिंतन में व्यतीत हो। सुनिए, कृष्ण चंद्र की रूप माधुरी के चिंतन में व्यतीत हो, जिससे तुम्हें अपने शुद्ध स्वरूप का साक्षात्कार हो जाए। एक एक शब्दों पर मैं प्रवचन कर सकता हूं, लेकिन समझिए, जब आप प्रभु के सुंदर स्वरूप पर ध्यान से केंद्रित हो जाते हैं, तो एक दिन आपको आपका शुद्ध स्वरूप का साक्षात्कार होता है। ये क्या हुआ? स्वरूप केंद्रित ध्यान और सविकल्प समाधि हुई, और उसके बाद
निर्विकल्प समाधि आपो आप आती है। इसलिए इसलिए कपिल जी ने विस्तार से भगवान का सुंदर स्वरूप का वर्णन किया। उनकी गदा हो या उनका मतलब साधन जो कुछ है वो सबका। तो वहां वैष्णव संप्रदाय में विशेष करके वल्लभ में ऐसा कहा जाता है कि प्रभु के चरण का ध्यान करेंगे, भरोसो इन चरणन केरो। तो याद रखे वो क्या करते हैं, वहां चरण का ध्यान करेंगे तो आपको शांति मिलेगी, और प्रभु के सुंदर मुख का ध्यान करेंगे तो आपको आनंद मिलेगा, जो आपको अपने मूल स्वरूप से जोड़ देगा। सच्चिदानंद वो आत्मा का मूल स्वरूप है। तो हमें प्रभु का ध्यान करना चाहिए, इस पर जो भाग दिया। और देखिए टीकाकार भी केवल एक ही, मैं सब नहीं जाता हूं, सब चाहिए तो एक पीएचडी का थीसिस हो जाए पूरा, इतना है। लेकिन लीजिए भगवान के बारे में मूल में ऐसा लिखा 3:28-11 में, वज्रांकुश ध्वज ध्वज सरोरुह लांछनाढ्यम। भगवान के चरण कैसे है, वज्र अंकुश ध्वज और कमल उसके चिन्ह से चिन्हित है। और वल्लभ सुबोधिनी में लिखने हैं, देखिए भगवत चरणारविंदम सम्यक चिंतयेत सम्यक त्वम दीर्घ कालाय कालेर अनंतैर्यम। योग सूत्र याद आएगा, दीर्घ काल और आनंद अनंतरीय, वो सतत चिंतन प्रभु का करना है। और महात्मा ज्ञान पूर्वकम, प्रभु के महात्मा ज्ञान का पूर्वक। और फिर क्या है, चरणों भक्ति प्रदायक, चरण भगवान की भक्ति देते हैं। अरविंदम तापनाशकम, अरविंद जो है कमल वो ताप का नाश करता है। वज्रांकुश ध्वज सरा सरोह लांछनम, उसका अर्थ क्या है, तो कहता है चिन्ह चतुष्टयाढ्यम, 4 प्रकार के चिन्ह से भक्तानाम पाप पर्वत प्रच्छेदनार्थम वज्र। देखो इंद्र का जो वज्र था वो पर्वत के पक्ष थे, वो उड़ते थे और सबको दबा के खत्म करता, ऐसा वेद में। और उसका छेदन वज्र से किया। तो देखो यहाँ वल्लभाचार्य जी क्या अद्भुत अर्थ करते हैं कि भक्ता नाम पाप पर्वत पक्ष, भक्तों के पाप रूपी पर्वत के जो पक्ष पांख है उसका छेदन के लिए प्रभु के चरण में वज्र है। आगे भक्ता नाम मनो गजवशीकरणम, फिर अंकुश, वो भक्त के मन रूपी जो गज हाथी है उसको अंकुश में लाने के लिए उसको वश में लाने के लिए अंकुश है। अत्र स्थिता नाम सर्व भय नाशन ज्ञापनार्थम ध्वज, उसमें ध्वज का चिन्ह है। तो ये बताते हैं कि मेरे भक्त के सब भय उसका नाश हुआ, उसको दिखाने के लिए वो ध्वज लहरा रहे हैं। और सुख सेवार्थम चाम्बुजम, भगवान का चरण में जो अंबुज कमल का निशान है वो सुख पूर्वक सेवा के लिए है। ऐसे एतानी लंछनानी चिन्नानी चतुर्विध पुरुषार्थ ज्ञापकानी, ये 4 है और 4 प्रकार के पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्राप्त कराने वाले हैं। मतलब ये इसका बहुत कुछ हमारे, हम पढ़ते नहीं है ये सब चीजें, पढ़े तब पता चले कि क्या है। कपिल भगवान ने प्रकृति और पुरुष उसकी बहुत सुंदर चर्चा की है, कहीं कहीं काव्यमय, जैसे उदाहरण के रूप में स्वयवनिषु यथा ज्योतिर एकम नाना प्रतीयते योनि नाम गुण वैषम्यात तथात्मा प्रकृति स्थितो। जब अग्नि अपनी योनि में आता है तो अनेक रूप से, कोयले में कोयले जैसा रूप हो जाता है, लकड़े में लकड़े जैसा रूप हो जाता है, और पूरे मकान में लगे तो मकान जैसा बड़ा हो जाता है। बस उसी प्रकार भगवान भी गुणों के वैषम्य के कारण अनेक रूप में आते हैं। और प्रकृति के तर्वों की चर्चा है। लोकस्य मिथ्याभिमते रचक्षु चिरम प्रसुप्तस्य तमस्य नाशये शता श्रांतस्य कर्म स्वनुसिद्धया दिया त्वमा विरासी किल योग भास्कर। देखिए उनको योग भास्कर कहा, माने अपने गुरु को, पुत्र को।
क्या लोकस्य मिथ्याभिमतेर चक्षु, लोक का जो मिथ्य मान अभिमान ज्ञान उसमें रहा वो चक्षु, और उसको खोलने के लिए और उसमें जो प्रसुप्त अंधकार है उसका नाश करने के लिए आप आए हैं, ऐसा वो बताते। तो ये कपिल कह रहे, अब देखिए, भक्ति योगश्च योगश्च मया मानव युदीरितः। कपिल ने भक्ति और योग दोनों को अलग बताया। भक्ति योग और योग बराबर, मया मान युदीरितः एतयोर एकने एव, इसमें से किसी एक द्वारा, चाहे भक्ति योग का आरंभ करो या तो पतंजलि वाला योग, उसका पुरुष पुरुषम व्रजेत, इसके द्वारा पुरुष जो है मनुष्य वो पुरुषम व्रजेत परम पुरुष के प्राप्त होता है। लेकिन मजे की बात यह है कि जब उद्धव गीता में, अब दूसरा विभाग, भगवान श्री कृष्ण योग की चर्चा करते हैं तो वहां उन्होंने भक्ति योग को भक्ति योग ही कह दिया। यहाँ कपिल मुनि ने भक्ति और योग दो अलग किए। देखिए, यमः कतिविदो, उद्धव गीता में उद्धव जी पूछ रहे हैं यम कतिविद प्रोक्त नियमो वारिकर्षण कशम को दम कृष्ण का तितिक्षा धृति, एक मतलब नियम कितने बताए, यम कितने हैं, देखा नियम कितने हैं, शम क्या है, दम क्या है, तितिक्षा धृति, हे प्रभु मुझे बताइए। और भगवान उत्तर में कहते हैं, ध्यान देकर सुनिए, अहिंसा सत्यम अस्तेयम असंगो रसंचय। देखो इसमें अहिंसा सत्य अस्तेय इत्यादि योग में कहे हुए ही बातें आ रही है, इसकी चर्चा अब मैं आगे करता हूं। आस्तिक्यम ब्रह्मचर्यम च मौनम स्थैर्यम क्षमा अभयम शौचम जपस तपो होम श्रद्धा तिथ्यम मदर्चनम, अंडरलाइन वर्ड, तीर्थाटनम परेहा परार्थेहा तुष्टिर आचार्य सेवनम एते यमास नियमा उभयोर द्वादश स्मृता। देखिए उन्होंने सब मिला के 24 गुनाए, कितने 24, और कहते हैं ये नियम के 7 यम है, और टीकाकार उसमें से 12 यम और 12 नियम बताने का प्रयास करते हैं, उसमें हम नहीं जाते। और मजा ये बात है कि भगवान ने ये सब उद्धव गीता में कहने के बाद इस पर उन्होंने क्या कहा, शमो मन निष्ठता यज्ञो हम भगवत्तम भगो में ऐश्वरो भावो लोभो भक्ति उत्तमा पंथा मन निगमा स्मृत। कहते मेरे निगम में, मेरे ज्ञान में, मेरे वेदों में भगवान कहते क्या है, शम यानी मेरे में निष्ठा। देखो वहां शम अलग चीज थी। आगे यज्ञ, वो भगवत स्वयं, यज्ञो वै विष्णु, भगो में ऐश्वरो मता, मेरा ऐश्वर्य वो मेरा भग है, और लोभ क्या है, मद भक्ति रुत्तमा। मेरी देखिए योग के सभी अंगों को इन्होंने क्या बना दिया, भक्ति बना दिया। अब मजे की बात है, यहाँ यम और नियम 24 दिखाए। मैंने जब पढ़ा हठयोग प्रदीपिका, क्योंकि कंपेरेटिव स्टडी करना चाहिए जब पढ़ते हैं तब, तो सुनिए उसमें अहिंसा सत्यम अस्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रह यमः, ये योग सूत्र है 2:30। अब देखिए योग हठ योग प्रदीपिका में, हठ योग प्रदीपिका में अहिंसा सत्यम अस्तेय ब्रह्मचर्य क्षमा धृति दया आर्जवम मिताहार शौचम चैव यमा दशः, वहां 5 की जगह 10 यम बना दिए। देखा ना, थोड़ा विचित्र लगता है, नहीं ऐसा नहीं है, ये हमेशा हुआ है कि कोई चीज हो तो उसको अस्वीकार करके उसमें और आचार्य डालते रहते हैं। हठ योग प्रदीपिका भी ये योग के विद्यार्थियों को लिए पढ़ने के लिए ग्रंथ के रूप में नियुक्त होनी चाहिए, होगी या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन एक अद्भुत ग्रंथ है, मैंने तो पूरा पढ़ा है, उसका गुजराती अनुवाद भी हो चुका है, और बड़ौदा से जानी करके विद्वान है उन्होंने किया है। आगे उसी प्रकार नियम हठ योग में शौच संतोष स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमा, ये हमें
योग सूत्र में 2:32 में मिलता है। हठ दीपिका में तपस संतोषमास्तिक्यम दानम ईश्वर पूजनम सिद्धांत वाक्य श्रवणम ह्रीमती च जयो हुतम नियमा 10 प्रोक्ता योग शास्त्र विशाल। यहाँ उन्होंने 10 कर दिए। देखो 5 का 10 ये सामान्य होता रहता है, ऐसा नहीं, दरेक विद्वान आते हैं और यही चीज को, मैं तो कंपेरेटिव स्टडी दे रहा हूँ, अपरोक्ष अनुभूति में शंकराचार्य ने यही चीज को कुछ और बता दिया। भगवान ने भक्ति बना दी योग के सबको। अब शंकराचार्य क्या कहता है देखें, सर्वम ब्रह्मेति विज्ञानम विज्ञान इंद्रिय ग्राम संयम यमोयम इति संप्रोक्त सम्यक अभ्यसनीयो मुहुर। यम क्या है? वो कहते हैं सर्वम ब्रह्मेति विज्ञानम, ये सब ब्रह्म है, ऐसा ज्ञान आ गया। तत्व ज्ञान में ये पूरी बात वहां थी, वहां जो थी वो हमारे लिए भक्ति बन गई। मूल यम में यम है, यहाँ भक्ति बन गई, यहाँ इन्होंने वेदांत बना दिया। देखा आगे, ब्रह्मैवास्मिति सद्वृत्तिया निरालंबतया स्थिति ध्यान शब्देन व्याख्याता परमानंददायिनी। कौन ध्यान क्या है शंकराचार्य के मत में? मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म एवास्मिति वृत्ति और निगमालंबन, निगम अरे निरालंबन, किसी का आधार नहीं रख करके और मैं ब्रह्म हूं इसकी स्तुति, वो ही ध्यान शब्देन व्याख्याता। तो ये हुआ, मतलब एक अवश्य देखिए हमारे वहां एक विशेषता रही कि जो आचार्य आते हैं वो अपने मत को पुराणों के मत के साथ जोड़कर कुछ नवीन हमें हमेशा देते हैं। तो शंकराचार्य ने यम नियम की अलग बात की, भगवान ने भागवत में यम नियम को बदल दिया। इसी प्रकार तो देखो आगे भगवान स्पष्ट कहते हैं भागवत में 11:20-6 में, योगास्त्रयो मया प्रोक्ता, ध्यान रखे मैंने 3 ही योग कहे, नृणाम श्रेयो विदित्सया, मानुष के कल्याण के लिए, ज्ञानम कर्म च भक्तिश्च नोपायो अन्यो अस्ति कुत्रचित। ज्ञान कर्म और भक्ति, उसके ने इसलिए पतंजलि योग को उन्होंने भक्ति में कर दिया। एष में परमो योगो मनस संग्रह स्मृता। देखा ने भगवान कहते हैं कि यमादिभिर योग पथै अन्विशिक्या च विद्यया ममाचोपासना बिर्वा नान्यर योगम स्मरेत मनः। देखिए यम इत्यादि का मार्ग ले लो, अन्वीक्षिकी यानी ज्ञान विद्या ले लो, या मम अर्चोपासना बिर, मेरी अर्चा और उपासना द्वारा बराबर मन को स्थिर करे, नान्यर योगम स्मरेत। आगे कहते यदि कुर्यात प्रमादेन योगी कर्म विगर्हितम योगे नैव रहे हम वो नान्यत्र तत्र कदाचन। टूक में ये सीधी बात ये है कि योग का भक्तिकरण भागवत करता है। प्रोक्तेन भक्ति योगेन भजतो मां असकृत मुने कामा हृदया नश्यन्ति सर्वे मयि हृदि स्थिते। मैंने जो कहा भक्ति योग, उसके द्वारा हृदय में रहे सब काम, और भी क्या होगा, विद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय की ग्रंथियों का भेदन हो जाएगा, छिद्यते सर्व संशया क्षीयंचे चास्य कर्माणि, और अब उपनिषद बदल गया, मयि दृष्टे अखिलात्मनि। देखा वहां था, देखा वहां अलग था पर यहाँ अलग हो गया। तो ये भगवान ने यही किया क्या कि योग वो कृष्ण ने भक्ति बना दी। यत् कर्मभिर तपसा ज्ञानेर वैराग्य तस्य यत् योगेन दान धर्मेण श्रेयोभिरपितैरपि सर्वम मद भक्ति योगेन। ये योग से जो मिलता है वही मिलता है। दूसरी एक बात जिसकी चर्चा में नहीं कर रहा लंबी समय अभाव में, वो है 11:27 भागवत 11वें स्कंद में 27 अध्याय में क्रिया योग की विशिष्ट चर्चा है, और वो पर आप कर सकते हैं। आगे बढ़कर वहां कुयोगी कौन होता है उसकी भी चर्चा है, समय अभाव में बहुत ज्यादा नहीं करता हूं, लेकिन ये याद रखे योगिनो अपक्व योगस्य, योग करता हो लेकिन योग उसका अपक्व हो,
तो जैसे वो उपसर्ग द्वारा उसका विनाश होता है, वो भी हम देखते हैं। जैसे गीता में जो चर्चा आई है कि भाई योगी छिन्ना ब्रह्म विनश्यति, वो सब चर्चा भी यहाँ एक या दूसरे रीते दिया है। लेकिन वो कहते हैं वहां छिल अंतिम बात कि तस्मात् सर्वात्मना त्याक्त निगृह्य मनो दिया मय्यावेशित या युक्त एतावान योग संग्रह। देखा, सर्वात्मना, संपूर्ण रीत से, हे तात, भगवान कह रहे हैं अपने उद्धव को, निगृह्य मनो दिया, मन को बुद्धि द्वारा निगृहित करो, और फिर मय्यावेशिततया युक्त। वो मन कैसा? मेरे में आवेशित किया हुआ जो मन, यानी भगवान में। और एतावान योग संग्रह, भागवत के मत में ये योग संग्रह है। फिर से याद रखे, वो योग, वो एकता जो वहां हमने सुना, पतंजल का योग, वो आप सब जानते हैं। कपिल मुनि ने योग और भागवत दोनों को अलग रखकर चर्चा की। तो कृष्ण भगवान ने योग जो है उसको मैयावेशित बना के केवल भक्ति में उसका परिवर्तन किया। और ये जो अध्ययन करता है वो ज्ञानामृतम भागवता या भाषितम, वो जो है भागवत, परम भागवत है उद्धव जी, उसको उन्होंने कहा तो क्या होता है? कृष्ण ने कहा, कृष्णेन योगेश्वर सेविताम दृणा, योगेश्वर की सेवन करने वाली, चरण को शरण करने वाले जो कृष्ण है उसकी किया, उससे क्या होता है कि श्रद्धया जगत सेव्य जगत विमुच्यते। यह है 11, 29, 48 के उसके श्रद्धा द्वारा जो करो तो आप ये पूरे जगत से मुक्त हो जाओगे। यही है भगवान के योग की विशेषता। तो योग फिर से कैसे जीना गीता सिखाती, कैसे मरना योग सिखाता है। और भागवत का योग यानी भगवान कृष्ण में संपूर्ण समर्पित हो जाना, ये भागवत का योग है। आप लोगों ने मुझे ये पुनः अध्ययन करने का, पूरे 18,000 श्लोक पढ़ने का जो अवसर दिया, इसलिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। थोड़ा समय होगा ज्यादा, मुझे माफ करना। कई चीजें मैंने छोड़ दी है, सूचन भी किए हैं, जैसे क्रिया योग इत्यादि का अध्ययन करना, या तो भगवान के स्वरूप का, या तो केवल योग माया शब्द पर पूरा सेशन कर सकते हैं। ऐसी जो चीजें हैं उसका आप अध्ययन करें, सब लोग आगे बढ़े, वही मेरी प्रभु से प्रार्थना है। योग यूनिवर्सिटी अद्भुत कार्य कर रही है। जाडेजा बहन या अपने दवे साहब और उनका सभी साथी लोग जो कुछ कर रहे हैं उसके द्वारा, याद रखे, नॉलेज इज अ बर्निंग टॉर्च, ईच जनरेशन रिसीव्स फ्रॉम द फॉर्मर, ट्रांसमिट्स टू द नेक्स्ट ब्राइटर देन एवर बिफोर। फिर से याद रख, सुनिए, नॉलेज इज अ बर्निंग टॉर्च, ज्ञान जो है वो एक बर्निंग टॉर्च, प्रदीप्त दीप शिखा है। और क्या होता है? ईच जनरेशन रिसीव्स फ्रॉम द फॉर्मर, वो अपने पूर्व युग से प्रत्येक युग प्राप्त करता है, लेकिन जो है उसमें उसको ज्यादा ब्राइटर, ज्यादा विशिष्ट चमक से युक्त बनाकर आने वाली पीढ़ी को देता है। तो योग की जो परंपरा हमारी अद्भुत है, उसको जागृत करके, पुनर्जीवित करके, उसको पुनर्व्यवस्थित करके प्रजा के सामने देने का जो प्रयास मुनि जी ने किया, उनको प्रणाम। वो प्रभु स्वरूप है, क्योंकि भागवत हमें स्पष्ट कहता है कि संत जो है, दृष्टिम सताम दर्शनेशु भवत तनु नाम, यानी संत जो होते हैं वो भगवान का तनु यानी साक्षात देह है। तो जिन्होंने ये स्थापित किया, इस संत को मेरा प्रणाम। वे हमारी परंपरा को आगे बढ़ा रहे, उनके आशीर्वाद से आगे बढ़ेगी। काम करने वाले सभी को प्रणाम, और आप सबको मेरा फिर से प्रणाम। हरिओम तत्सत।
જી સાહેબ, સાદર પ્રણામ સાથે આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું, ધન્યવાદ. પણ એ પહેલા હું વાત કરું છું આપની, પણ મેં આપણા વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ મુકેશભાઈ શાહ સાહેબને જોયા, એટલે શાહ સાહેબ આપને પણ અમે બધા સાદર વંદન કરીને આપનું સ્વાગત કરીએ છીએ. સાહેબ, આપે જેમ અમારા બાપુજી સ્વામી કૃપાલવાનંદજી, એમની એક આખી શ્રેણી છે, ગ્રંથ શ્રેણી, અને એનું નામ છે ગાગરમાં સાગર. વાહ, એટલે હા, એમ આમ આપે પણ અમને 1 કલાકમાં, અમે હજુ ધરાયા નથી, પણ આપની પ્રકૃતિ, આપની ઉંમર એ બધું જોતા અને ફરીથી અમે આપને ચોક્કસ આ બીજા ઉપર બોલાવીશું એકાદ જુદા જુદા વિષય પર. પણ ઘણું બધું અમને નવું જાણવાનું મળ્યું. અમારે ત્યાં ભાગવત વિષય ભણાવાય છે. સેમિસ્ટર 6 સુધી તો ગુરુજીએ કથા ઉપર જ ભાર મૂક્યો છે કે પહેલા કથાથી માહિતગાર થાવ, પણ પછી MA ને PhD ના સ્કોલર્સને આપની પાસેથી ઘણું મળ્યું છે અને બધા આપની પાસે દોડીને આવશે ને હું મોકલીશ સાહેબ. આપે જે કહ્યું કે ભાગવત એ હંસ માટેનો, પરમહંસ સંન્યાસીઓ માટેનો છે. પછી બીજી વાત આપે બહુ સરસ કરી, હાર્વર્ડ યુનિવર્સિટીના નિષ્ણાત જે વિદેશી છે, એમણે દશમ સ્કંદને ઉત્કૃષ્ટ કાવ્યની કક્ષામાં મૂક્યું છે. બેન પછી કોઈક આપે વાર હા પોએટ્રી ઇન ભાગવત હા, ઉપર એટલે હું કાવ્ય સૌંદર્યની રીતે કે આખું દશમ સ્કંદને ભૂલાય નહીં, એ સરસ વાત. પછી બીજું, ભાગવતમાં યોગ વિવિધ રીતે આવ્યો છે સાહેબ, અને એમાં આપે 20 પાના ભરીને જે સંશોધન કર્યું છે, એ હું આપની સામે 2 હાથ ફેલાવીને યાચના કરું છું, અમને આપજો. અમે ઝેરોક્સ કરીને પાછું આપીશું આપને, અમે ટાઈપ કરાવીને પણ પાછું આપીશું, પણ એ આપજો અમને સાહેબ. ચોક્કસ. પછી બીજું પણ નવું જાણવા મળ્યું કે કૃષ્ણની બંસીમાં શિવજી, એ આપે અમને બહુ સારી માહિતી આપી છે ને? હા. અને સાહેબ, અત્યારે બધા ચેટ ઉપર લખે છે, સાથે સાથે વાર્તાલાપમાં મોટા ભાગના એ લખ્યું છે કે ગીતા સિખાતી है कैसे जीना और भागवत सिखाता है कैसे मरना. આ એક નવું સરસ જાણવા મળ્યું. પછી આપે જે વાત કરી 11મા સ્કંદ અધ્યાયના 11મા સ્કંદના 30મા અધ્યાયનો 26મો શ્લોક, બલરામજીનો દેહ ત્યાગ. તો સાહેબ, અમારે MA માં 102 માં પેપર છે, ધ કન્સેપ્ટ, હિન્દુ કન્સેપ્ટ ઓફ લાઈફ એન્ડ ડેથ, જીવન અને મૃત્યુની ભારતીય સંકલ્પના. એમાં અમારે 102 જે આ પેપર છે, એમાં બલરામજીનું યોગ દ્વારા દેહ ત્યાગ અને કૃષ્ણનો યોગ દ્વારા દેહ ત્યાગ આપેલું છે. પછી આપે જે મકરંદ દવેભાઈએ આપને કહ્યું કે મંદિર, અને એમાં આખું યોગ સમાયેલો છે. તો અમારે MA માં 304 પેપર છે. એમાં છે કે ભારતીય સંસ્કૃતિમાં સાંકેતિક સ્વરૂપો દ્વારા અભિવ્યક્તિ, તો યોગ અભિવ્યક્તિમાં મંદિરનું આખું આ એક પ્રકરણ પણ અમારે છે. પણ આપની પાસેથી વધારે જાણવા મળ્યું. બીજું આપે કહ્યું કે શ્રીધરની વૈદેહી ટીકા, તો વડીલ મુરબ્બી પ્રશાંતભાઈ દવે સાહેબના થકી હું મને વ્યવસ્થા પણ કરીશ. આખો અમારા KGB માટે સેટ મળ્યો છે, અને એક મેં સુરત કેન્દ્રને પણ કહ્યું છે કે તમે આપને લોકો પણ વસાવો, બધાએ વસાવવા જેવું છે. હા. પછી આપે કપિલ ગીતાની વાત કરી, તો અમારે ત્યાં PhD માં અત્યારે સ્કોલર છે જે મુંબઈ યુનિવર્સિટીમાં વેદાંતના લેક્ચરર છે, અને એ એમનું શોધપત્ર કાલે રજૂ કરવાના છે કપિલ ગીતા વિશે. સાહેબ, આપને કહેતા મને આનંદ થાય છે કે આવતીકાલે અમારા PhD ના સ્કોલર્સ, MA ના BA 6 સેમિસ્ટરના વિદ્યાર્થીઓ, 27 વિદ્યાર્થીઓ કાલે પોતાના ભાગવતમાં યોગ રહસ્ય અથવા ભાગવતમાં તત્વજ્ઞાન, એના ઉપર કાલે શોધપત્ર રજૂ કરી રહ્યા છે 27 વિદ્યાર્થીઓ. એમને સાહેબ આપ આશીર્વાદ આપો કે એ પહેલી વાર પગ માંડી રહ્યા છે ડગ, તો એ એમાં ધીમે ધીમે સફળ થાય એ રીતે. એટલે અને અમને સાહેબ આનું રેકોર્ડિંગ મળવાનું જ છે, એટલે બધું આપે જેટલું કહ્યું છે એ બધું અમે એમાંથી ઉતારી લઈશું, આખી અમે સ્ક્રિપ્ટ બનાવીશું, બધાને વહેંચીશું, અને પણ આપની પાસે પેલા 20 પાના હું લેવા આવીશ સાહેબ. ચોક્કસ. કારણ કે હું છે ને અડધી બ્રાહ્મણ છું, એટલે હું માગવામાં શરમાતી નથી, એટલે હું ચોક્કસ ભિક્ષામ દેહી કરતી આપના દ્વારે આવીશ. અને બીજું, આપે અમને જે પેલું પુસ્તક આપ્યું હિન્દુ ધર્મ એકતા માન્યતા, એ મારા બધા PhD ના વિદ્યાર્થીઓ, અમારા શિક્ષકોને, અમારા યોગેશભાઈ ભટ્ટ સાહેબ બેઠા છે, એ બધાએ કહ્યું
બીજા અમારા પ્રવીણસિંહ વાસિયા અને બધા છે, બધાએ કહ્યું કે બહુ સરસ પુસ્તક છે. એમાં કારણ કે પેલું ગુરુ શિષ્ય સંવાદ રૂપે આપ્યું છે ને આપે, એટલે એ રીતે શિક્ષકો માટે બહુ મદદરૂપ નીવડેલું છે. દરેક લાઇબ્રેરીને મેં સેન્ટરમાં આપ્યું છે સાહેબ. તો અને અહીંયા પાછું વચ્ચે હું ભૂલી જઉં એટલે અમારા આખા કાર્યક્રમનું આ લિંકનું સંચાલન કર્યું પીએચડી ના અષ્ટાંગ યોગના સ્કોલર ઐશ્વર્યા જાડેજાએ, અને હંમેશા અમને દરેક વેબિનારમાં સેમિનારમાં મદદરૂપ રહે છે. એમએસસી ના વિદ્યાર્થી છે દીકરા યશ વોરા, એ બંનેનો હું ખુશ આભાર માનું છું કે એમના સિવાય અમે પાંગળા છીએ. સાહેબ આભાર તો નથી માનતી, પણ તમને બધાને હું કહું કે આપણે કેટલા ભાગ્યશાળી છીએ કે આજે સાહેબ આપણને મળ્યા છે, અને સાહેબ આપણા છે, કાયમ માટે આપણા છે. આપણે ફરીથી સાહેબને બોલાવી એમની હું પારકો નથી. આપ નથી, બિલકુલ આપ પારકા નથી, આપ અમારા જ છો સાહેબ, અમારા લખોલી યુનિવર્સિટીના વડીલ છો. મને આત્મીયતા છે એની સાથે, એના સ્થાપક માટે બહુ જ માન છે. જી 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 જી. દરેકને. અને આજે સંન્યાસીની રાજેશ્વરી મૈયાજી આપણી સાથે જોડાયેલા છે, એટલે ગુરુજીને બધો આંખે દેખ્યો અહેવાલ એ કહેશે જ બધું ગુરુજીને. હા, ના ના, એ ચોક્કસ આપને મૈયાજી એકવાર જાવ તો બધું લેતા જજો, મને ગમશે. ચોક્કસ, જી જી, જરૂર જરૂર. ગયા હતા, બહુ ચર્ચા નથી, પણ દર્શનનો તો લાભ મળ્યો મને, એ પણ હું ધન્ય માનું છું. એટલે ના ના, ચોક્કસ ચોક્કસ. એ આજના કળિયુગમાં ખેચરી મુદ્રા સિદ્ધ કરનાર એવા યોગી, એના આશીર્વાદ નીચે જ અમે બધા ઉછરી રહ્યા છીએ. સાહેબ યુનિવર્સિટી તરફથી આપનો બધાનો આભાર માનું છું, અને પ્રશાંતભાઈ દવે સાહેબ આપને વિનંતી કરું કે આપ આ સેશનનું સમાપન કરો. જય ભગવાન બા જી, હું આવતીકાલે ગુરુજીને રિપોર્ટ બધો આપીશ. હા હા, જુઓ સાહેબ, અમારા સંન્યાસીની યોગીની રાજેશ્વરી મૈયાજી છે, એમણે કહ્યું કે હું આવતીકાલે ગુરુજીને આ રિપોર્ટ આપીશ. અને મૈયાજી પ્રણામ પાઠવીશ. હા હા, મૈયાજી આપ પ્રવાસમાં પણ વેબિનાર એટેન્ડ કર્યો, અને સાહેબના પ્રણામ પણ પાઠવજો ગુરુજી. અને ખૂબ સરસ, આજનો ખૂબ જ સરસ વેબિનાર રહ્યો, અને ઘણું નવું જાણવા મળ્યું. હા, એ જ ને આપણને. થેન્ક યુ. જય ભગવાન. જી જી. હા વર્ષાબેન, હા અનમ્યુટ કરો બસ. ઐશ્વર્યા, પ્રશાંતભાઈ સાહેબને શેર કરજો બેટા. જી હા જી. નમસ્કાર. એક જ વાક્યમાં મારે સાહેબને કહેવું છે, એક જ વાક્યમાં, કે ઉપકૃતોસ્મિ. અમારી આખી સંસ્થા એ ઉપકૃતોસ્મિ, આપે અમને બધાને ઉપકૃત કર્યા છે, અને અમારા આપને પ્રણામ અસ્તુ. જી સાહેબ, ગૌતમભાઈ સાહેબ, હું આપને જે ચેટ પર મેસેજ આવ્યા છે એ થોડા હું વાંચી સંભળાવું. લગભગ બધાએ મોટા ભાગના આપ્યું છે કે ગીતા આર્ટ ઓફ લિવિંગ, ભગવત આર્ટ ઓફ ડાઇંગ. પછી કોઈએ લખ્યું છે ઇટ્સ અમેઝિંગ ડિસ્ક્રિપ્શન ઓફ પરાભક્તિ. પછી લખ્યું છે વી આર વેરી વેરી થેન્કફુલ ટુ ડોક્ટર ગૌતમભાઈ સાહેબ જી ફોર ગાઈડિંગ અસ ફોર ભાગવત. ખૂબ માહિતીજનક, ખૂબ થેન્ક યુ. પછી કેન વી ગેટ નોટ્સ ફ્રોમ રિસ્પેક્ટેડ સ્પીકર? યસ, મળશે આપણને લલિતભાઈ. વેરી નાઇસ એક્સપ્લેનિંગ. પછી ખૂબ જ માહિતી સભર. જય ભગવાન સર, વી આર વેરી થેન્કફુલ ટુ ડોક્ટર ગૌતમભાઈ સાહેબ. શિવ મંદિરમાં યોગ અમને પહેલી વાર જાણવા મળ્યું. પાછું છે કે જીને કે લીએ યોગ અને મરને કે લીએ ભાગવત. ખૂબ સરસ માહિતી. ભાગવત સિખાતા હૈ કૈસે મરના. ગાગરમાં સાગર, પણ આપની પાસેથી ખોબો પણ રહ્યો છે અધૂરો. બસ સતત સાંભળીએ. અમારા BA2 ના વિદ્યાર્થી છે પિયુષભાઈ. પછી અમારા મલાવના વિદ્યાર્થી છે પટેલ સાહેબે પાછું એ જ વાત છે કે ગીતાજી જીવવાનું અને ભાગવતજી મરવાનું શીખવાડે છે, તો જીવન કેટલું સુંદર બને. સૌને જય ભગવાન. આદરણીય શ્રી ગૌતમભાઈ સાહેબને સાદર વંદન. ભાગવતને નવી રીતે, નવી દ્રષ્ટિએ જોવા જાણવા મળ્યું. PhD ના વિદ્યાર્થીની
પાયલબેન પટેલ લખે છે કે ખૂબ વિવિધસભર માહિતી જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું, અમે ખૂબ ભાગ્યશાળી. રેખાબેન પટેલ પણ એમનું મત મૂકે છે. BHA ના વિદ્યાર્થી લલિતભાઈએ 5-6 વાર પોતાનો મત આપ્યો છે, પ્રતિભાવ. સાહેબ બધા વિદ્યાર્થીઓ આપને શત પ્રણામ કરે છે અને અમે ફરીથી ખૂબ ભાગ્યશાળી છો. સાહેબે એક જ શબ્દમાં કહ્યું ઉપકૃતોસ્મી. મને ભગવતી પ્રસાદ પંડ્યા સાહેબ યાદ આવી ગયા. એ પણ હંમેશા ઉપકૃતોસ્મી અને ગૃહીતાસ્મી મારા શિક્ષક હતા, મારા પ્રોફેસર હતા, મારા ગુરુ. હાજી હા, હું એમની પાસે જ ભણેલી સંસ્કૃત. ફરીથી આપને અમે પ્રણામ કરીએ છીએ અને આપ આપની પ્રકૃતિ સંભાળજો અને આપ ફરીથી પધારો એવી શુભેચ્છા. અને બીજું તમને બધાને કહેવાનું કે સાહેબને ત્યાં એમના દીકરા બીમાર હતા, તો એમના દીકરા એમને લઈને દવાખાને ગયા હતા. 11:15 સુધી તે લોકો ત્યાં હતા, પણ એ લોકો ઝટપટ આવ્યા પાછા, કેમ કે બી દાદાજીને પિતાજીને લિંક જોઈન કરી દેવાની છે. એટલે જે ઘરમાં વડીલોને આવો સહકાર આપનારા સંતાનો હોય, એ વડીલોના આશીર્વાદ કેટલા મહત્વના છે. બીજું સાહેબ, આપની એક વાત હું કહી દઉં કે અત્યારે આ બધા જે અમારા બેઠા છે, લગભગ 117 જેટલી સંખ્યા હતી, એમાં લંડન થી પણ 3 જણા છે. અને અમારે ત્યાં ડિપ્લોમામાં 75 વર્ષના બા આ વખતે દાખલ થયા છે ડિપ્લોમામાં. અને BA1 માં પહેલા સેમિસ્ટરમાં 70-71 વર્ષના બા દાખલ થયા છે. કે એ બધા જ હું જોતી હતી, એ લોકો નોટ્સ લઈને બેઠા છે અને આપ જે કહેતા હતા એ બધું એ લોકો ટપકાવતા હતા. એટલે પુષ્કળ પ્રેમ આદર સાથે બધા અમે ફરીથી આપને પ્રણામ કરીએ છીએ. સાહેબ જરૂર પધારજો, અમને ખૂબ આનંદ થયો છે. પોતાના છો એટલે વડીલ છો એટલે આભાર માનીએ, પણ પોતાના છો એટલે આનંદ બહુ થાય છે. બસ આપણે આભાર નથી માનવો. જી હાજી. આપને પ્રણામ કરું, આશીર્વાદ આપો અમને બધાને. અને બધા આપણે હવે બપોરે 3:30 વાગે મળીએ છીએ. એ સેશનની લિંક હવે હું મૂકું છું, કારણ કે જુદી છે એટલે પેલી ભેગી ના થાય, એટલે મૂકી નથી, પણ હવે મૂકું છું. એટલે બધા જમી પરવારીને થોડી ઊંઘ ખેંચીને ચાનો કપ પીને બધા 3:30 જોડાઈ જજો. હા, આવી જ રીતે આપણે ડોક્ટર ભદ્રાયુભાઈ વછરાજાની એમને આપણે સાંભળીશું. જય ભગવાન, જય ભગવાન, નમસ્તે, જય ભગવાન, જય ભગવાન.